سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ کہانی جس کا نام ہے قلندر ذات۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 43 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا، ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی دوپہر نہیں ہوئی تھی، میں باہر والے کمرے میں بیٹھا ہوا میلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات جو شاہ نواز نے دھمکی دی تھی، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے جو علاقے میں خوف و ہراس پھیلا کر اپنے طاقتور ہونے کا جو تاثر پھیلایا ہوا تھا، اسے وہ ہر حال میں دوبارہ قائم کرنا چاہتے تھے، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ ہمارا وجود ختم کر دیتے۔ میلے میں انہوں نے شر پھیلانا ہی تھا۔ پہلے صرف اپنا تاثر بحال کرنا مقصد ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ وقاص کا انتقام بھی ہم سے لینا چاہتے تھے۔ ملک سجاد یوں ہی ان کا ساتھ دینے یہاں نہیں آ گیا تھا، وہ بھی زخمی سانپ تھا۔ شاہ زیب کی تو ایک طرح سے سلطنت چھن گئی تھی، اس کا بس چلتا تو اب تک وہ ہمیں ختم کر چکا ہوتا۔ ایک طرف دشمنوں کا یہ اتحاد تھا، لازمی بات تھی کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے یہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ وہ طاقتیں ان کے ساتھ تھیں جن کا نیٹ ورک ہم نے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف جان اور کرسٹینا کا یہاں آ جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ یہاں ایسا کچھ ہے جس سے انہیں فائدہ مل سکتا ہے، اور انہیں وہ مہرے دکھائی دے رہے تھے جو ان کے کسی کھیل میں کام آ سکتے تھے، چاہے کسی رنگ ہی میں سہی۔ ان کا مقصد خیر خواہی نہیں تھا۔ تیسری طرف شعیب کی آمد ہمارے لیے جیسی بھی ہوتی، لیکن اس کی پہلی ترجیح اس کی اپنی ایجنسی تھی، اسے اپنے مقاصد عزیز تھے۔ ہم اگر ان کے مطابق چلیں گے تو وہ ہمارے دوست ہیں، اگر ان کے مطابق نہیں ہیں تو انہیں دشمن بنتے ذرا بھی وقت نہیں لگنا تھا۔ مختلف قوتیں ہمارے گرد گھیرا ڈال رہی تھیں۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ رندھاوا کا فون آ گیا۔ ایک خبر ہے جمال، اسے ذرا غور سے سننا، اس نے متانت بھری آواز میں کہا۔ بولو، کیسی خبر ہے؟ میں نے کہا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر تمہارے لیے کیسی ہے۔ خیر، تمہارے دوست جسپال کے بارے میں چھان بین کی اطلاع ہے کہ وہ جرائم میں ملوث ہے، اسی بارے میں چھان بین۔ اس نے کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، جرائم والی بات درست نہیں، کہیں نہ کہیں سے غلط فیڈ ہوا ہے، کیا اس کا پتہ کر سکتے ہو؟ وہ تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن پھر بھی اسے یا تو واپس جانا ہوگا یا پھر ویزا بڑھائے گا۔ اطلاع کے مطابق اس کا ویزا ختم ہونے والا ہے۔ پہلی صورت میں ممکن ہے کوئی بات نہ ہو، لیکن دوسری صورت میں کوئی نہ کوئی ایجنسی تمہیں تنگ کرے گی۔ تم اپنے دشمنوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو ایک دم سے مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، یار بات سن، یہ کہیں شعیب تو اس مقصد کے لیے یہاں نہیں آیا؟ مجھے ابھی بتا دے، اگر بعد میں پتا چلا تو۔ میں نے کہا تو وہ بولا، جمال اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے، ذرا سا بھی اعتماد ہے، تو اسے دشمن مت سمجھنا۔ وہ سمجھو میں ہی ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، میں اسے خود تم تک لایا ہوں۔ کیوں لایا ہوں یہ میں تمہیں بعد میں تسلی اور تفصیل سے بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں جسپال سے بات، پھر بتاتا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے ایک دم سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں جسپال کے ہونے سے بڑا حوصلہ محسوس کرتا تھا۔ ظاہر ہے وہ جائے گا نہیں تو اسے چھپ کر رہنا ہوگا، اور وہ غیر قانونی ہو جائے گا۔ پریشانی بڑھتی چلی جائے گی۔ ویزا ختم ہو جانے والی بات تو ہو سکتی تھی، لیکن جرائم والی بات کہاں سے آئی؟ اس بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ جسپال حویلی میں تھا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں محو تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے لیپ ٹاپ پرے کھسکا دیا اور میرے چہرے پر دیکھ کر بولا، خیر ہے، بڑے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو، کہیں تانی نے شادی کی فرمائش تو نہیں کر دی؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے رندھاوا کی اطلاع کے بارے میں بتایا تو وہ بھی ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ پھر دھیرے سے بولا، میری آج ہی جسمندر سے بات ہوئی ہے، اس نے بھی مجھے بتایا ہے۔ دراصل راہ والوں نے میری اس وقت سے نگرانی شروع کر دی تھی جب میں بھارت میں تھا۔ میں کینیڈا گیا اور وہاں سے فوراً ہی یہاں آ گیا۔ میں اس دوران ان کی نگاہوں سے اوجھل رہا ہوں۔ ایک تو کیس ختم کر دینے سے میں فوراً ہی ان کی نظروں میں نہیں آیا تھا، دوسرا میں یہاں رہا ہی نہیں تھا، لاہور ہی سے سندھ چلا گیا تھا۔ میں جب یہاں آیا تو ان کی نگاہوں میں آ گیا کہ وہی جسپال ہوں۔ اس نے تفصیل بتائی تو میں نے پوچھا، کیا اس نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے خلاف کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ صرف شک ہے، اور وہ بھی راہ نے پیدا کیا۔
यहाँ शाह नवाज जैसे उनके کارندے تو ہیں ہی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیسے تم کہو ویسے میں آج ہی اسلام آباد نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ویزا بڑھ جائے گا، یہ میلہ تو بھگتا لیں، پھر دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی ویزا ختم ہونے میں 4 دن باقی ہیں ابھی۔ یہ جسمندر کیا چیز ہے؟ اس کی اتنی رسائی ہے کہ ہر معاملے کی خبر دیتا ہے، ایسا کیسے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، یار لوگ روہی جیسے ویرانے میں بیٹھ کر نیٹ ورک چلا رہے ہیں، وہ تو پھر کینیڈا میں ہے۔ دولت اور طاقت کے ساتھ اگر عقل بھی استعمال کر لی جائے تو ممکن ہے۔ وہ میدان کا آدمی نہیں، لیکن پس پردہ وہ اپنا کھیل اس طرح کھیل رہا ہے کہ ہر جگہ اس نے اپنے مہرے جما دیے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ خود کسی کے کھیل کا مہرہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو جسپال، اگر آرام سے ویزا بڑھ جائے تو ٹھیک، ورنہ غیر قانونی کام مت کرنا۔ اب تم نظروں میں ہو، ممکن ہے تم پر راہ کا ٹھپا لگا دیں۔ بہت احتیاط کرنا، ورنہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ تبھی میں نے کہا، ویسے میرا تو خیال ہے کہ تم چپ چاپ نکل جاؤ کینیڈا، میں دیکھ لوں گا سب، کیونکہ تمہیں بھارت بھی جانا ہے، تمہیں وہاں مشکل نہ ہو جائے۔ کیا میں روہی سے رابطہ کر کے پوچھ لوں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا تو میں نے کہا، نہیں، تم نکل جاؤ۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو اس نے کاندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میرے کاغذات لاہور میں ہیں، میں آج ہی نکلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور میرے گلے لگ گیا۔ شام ہو رہی تھی، جسپال چلا گیا تھا، چھاکا اس کے ساتھ گیا تھا۔ انہیں گاؤں سے نکلے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ رات جس میں ہم نے اپنا ماضی دیکھا تھا، اس نے جسپال میں ایک الوہی پیدا کر دی تھی۔ وہ میدان جس نے سونی کو ملایا اور پھر جسپال کو۔ میں چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا اور پھر بائک لے کر نکل گیا۔ میں اس میدان میں کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ شاید تنہائی میں جسپال کی یاد کروں تو مجھے سکون مل جائے۔ میں مسافر شاہ کے تھڑے تک جا پہنچا۔ جب میں نے بائک کھڑی کی، اس وقت مجھے درخت تلے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے لمبے سفید بال تھے، اسی طرح سفید ریش چمکتا ہوا چہرہ۔ مجھے لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ کوئی مسافر ہو سکتا تھا جو سستانے کے لیے یہاں بیٹھا ہو، مگر یہ وقت نہیں تھا سستانے کا۔ اس وقت تو مسافر اپنی منزل کی طرف رواں ہوتے ہیں کہ کسی ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ یہ ویرانہ تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پر مجھے کیا، مجھے تو کہیں تنہائی میں بیٹھنا تھا۔ شاید یہ بھی ایسے ہی سکون اور تنہائی کے لیے یہاں بیٹھا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے بزرگ خیال کرتے ہوئے اسے دور ہی سے سلام کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، آ جاؤ، میں تیرے ہی انتظار میں ہوں۔ اس کے یوں کہنے پر میں چونک اٹھا۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ میرے لیے اب یہ انہونے واقعات نہیں رہے تھے۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیوں پریشان ہو تم؟ ہر کوئی سدا ساتھ تو نہیں رہتا، اور پھر جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس درویش نے دھیمے مگر پرسکون لہجے میں کہا، پریشانی تو ہوتی ہے جب دشمن قوتیں چڑھ آئیں۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بولا، خوف اور پریشانی دو مختلف چیزیں ہیں نوجوان، اور پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ جہاں جہاں بھی حق اپنا ظہور کرتا ہے، وہیں پر باطل آن موجود ہوتا ہے۔ حق اور باطل کی یہ کشمکش تو ظہور آدم سے ہو گئی تھی۔ یہ کوئی نئی اور انوکھی بات تو نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ابلیس کب بنا؟ میرے خیال میں تو وہ آدم سے پہلے کا تھا۔ میں نے اپنے علم کے مطابق بتایا تو وہ بولے، بے شک اس کا وجود پہلے ہی سے ہوگا، لیکن اس وقت وہ عزازیل تھا۔ بحث اس سے نہیں کہ وہ کیا کرتا تھا اور کتنا مقرب تھا۔ جیسے ہی ظہور آدم ہوا اور اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ابلیس بن گیا۔ یعنی ابلیس اور ابلیسیت کا ظہور اس وقت ہوا جب آدم کا وجود اس کائنات میں سامنے آیا۔ جی، تب سے شیطان پوری قوت سے انسان کو بھٹکا رہا ہے، اور میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹ کر بولا، تجھے کس نے کہا کہ شیطان کوئی قوت رکھتا ہے؟ شیطان کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے نوجوان، یہ سمجھ لو۔ تو پھر وہ کیسے بھٹکا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ نیکی اور برائی، خیر اور شر، انسانیت اور شیطانیت، ان سب کا ظہور کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ان کا ظہور ہوتا ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں یہ خیر ہے یا شر، انسانیت ہے یا شیطانیت؟ اس نے میرے چہرے پر دیکھ کر پوچھا
تو ایک دم سے میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں سرسراتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکا، میرے خیال میں یہ انسان کا وجود ہی ہے جس سے یہ سب ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب انسان کا وجود انسانیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور وہیں سے شیطانیت بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو ایسا ہے کیوں؟ شیطان کا کوئی ہرکارہ یا خود شیطان کبھی سامنے آیا ہو تو پھر شیطانیت انسان کے وجود سے ظہور کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو آپ ہی بتائیں۔ میں نے سمجھنا چاہا تو وہ بولے، رب تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اب اسفل السافلین کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انسان ہی شیطان کو طاقت دے رہا ہے۔ شیطان کی اپنی کوئی طاقت نہیں، انسان اسے اپنے وجود میں راہ دیتا ہے تو ہی شیطان کو اپنے ظہور کا موقع ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس کو رب تعالیٰ نے مہلت دی ہے تو انسان کو کتنی بڑی قوت سے نوازا ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکتا ہے۔ انسان کے پاس تو طاقت ہے، انسان اسی وقت شیطان سے ڈرتا ہے جب اسے اپنی طاقت کا ادراک نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی طاقت کا ادراک کیسے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، جب تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے تبھی شیطانیت کے آلائے کار بنو گے، تبھی وہ تمہارے وجود سے راہ پائے گا۔ تم شیطان کو اپنے وجود سے نکال باہر پھینکنے اور اسے روک دینے کی طاقت رکھتے ہو، قوت ہے نہ تو ہی ایسا کر سکتے ہو۔ ہمارے اندر جو رب تعالیٰ نے انسان اور انسانیت رکھ دی ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ اصل میں یہ ہماری غفلت ہے جس نے ہمیں ہی اپنے آپ سے بوجھل کر رکھا ہے۔ جس کی نگاہ اپنے آپ پر ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ وہیں پر شیطان نے قابو میں آ جانا ہے۔ یہ شیطان کو بھی معلوم ہے۔ اپنے آپ پر نگاہ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، عجیب بات ہے نوجوان، تم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتے، اس پر نگاہ نہیں رکھتے ہو۔ تمہارا وجود جس میں سب کچھ ہے، جو تمہاری اصل ہے، جو احسن تقویم پر ہے، اتنی گراں مایا ہستی کو نہیں دیکھو گے؟ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکے اور پھر بولے، یہ نگاہ ہی تعین کرتی ہے کہ یہ نیکی ہے یا برائی۔ دیکھو، دنیا میں عورت کا وجود ہے، جب ہم عورت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری نگاہ ہی اس کے رشتے اور مقام کا تعین کرتی ہے۔ جیسے نگاہ اٹھتی ہے تو سامنے والی عورت کے ماں ہونے کا تعین کون کرتا ہے؟ ماں کے لیے ہمارے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے؟ پھر نگاہ اٹھتی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ ہماری نگاہ سارے رشتوں اور ان کے مقامات کا تعین کرتی ہے۔ ہمارے اندر کی نگاہ کا کوئی تو معیار ہوگا۔ اسی طرح یہ تعین کرنا کہ کیا نیکی ہے اور کیا برائی، جب انسان سے ظہور ہوتی ہے تو انسان ہی اس کا تعین کرتا ہے، اسی معیار سے جو اسے رب تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تو پھر انسان کیوں شیطانیت سے مات کھا رہا ہے جب شیطان کے پاس طاقت ہی نہیں؟ انسان تو برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا، جب انسان کی نگاہ اپنی اچھائی والی قوت پر ہوگی، اسے ادراک ہوگا کہ نیکی کی طاقت کتنی عظیم ہے، تو شر اس کی نگاہ سے اوجھل ہوگا، اس کا تو وجود ہی نہ رہا۔ لیکن جب وہ شر کو نگاہ میں رکھے گا تو گویا وہ شیطانیت کو اپنے وجود میں راہ دے رہا ہے۔ شیطان بھی تو اپنا آپ انسان کے وجود سے ظاہر کرتا ہے، تو انسان حق کو اپنے وجود سے ظاہر کیوں نہیں کر سکتا؟ حق کا تعین اس کی نگاہ ہی کرے گی، انہوں نے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ بزرگوں، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے؟ میں نے پھر وہی سوال دہرایا۔ اسی طرح میرے اور بابا جی کے درمیان باتیں چلتی رہیں۔ میں وقت اور بوریت سے بچانے کے لیے یہاں پر ان کا ذکر نہیں کرتا۔ آخر میں بابا جی نے مجھے کہا، پھر آنا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، جاؤ اب۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کو کہا تو میں اسی لمحے اٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، بائک اٹھائی اور وہاں سے نکل آیا۔ واپسی پر میں خود میں ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا لیکن ہمارے گھر میں اجالا تھا۔ اماں نے گھر میں رات کو کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ سارا، اس کا بیٹا مراد، تانی اور سونی کے ساتھ چھاکا بھی موجود تھا۔ اماں نے صحن میں ہی دسترخوان لگا دیا۔ ہم بڑے سکون سے کھانا کھا رہے تھے کہ میرا فون بج اٹھا۔ میں نے فون سننے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سونی نے روکتے ہوئے کہا، جمال، کھانا تو کھا لو پھر دیکھ لینا۔ میں نے ہاتھ روک لیا مگر فون مسلسل بجنے لگا تو اماں نے کہا، جمال دیکھ لو نا۔ میں نے فون اٹھا کر سکرین دیکھی تو وہ حویلی سے تھا۔ میں نے کال رسیو کی تو دوسری طرف سے سیکیورٹی گارڈز کا انچارج تھا۔ میری آواز سنتے ہی بولا،
सर, आप फायरिंग की आवाज़ सुन रहे होंगे। हवेली पर हमला हुआ है, पता नहीं कौन लोग हैं। उन्हें कुछ देर रोक कर रखो, मैं अभी आया, मैंने कहा और इंतहाई तेजी से उठते हुए कहा, हवेली पर हमला हुआ है, जल्दी निकलो। जब तक मैं हथियार उठाकर निकला, छाके के साथ तानी जाकर कार में बैठ चुकी थी। उसने सोहनी और सारा को सख्ती से मना कर दिया कि कुछ भी हो बाहर नहीं निकलना। छाका किसी को फोन कर रहा था। इसी दौरान उसने तेजी से कहा, तुम निकलो, मैं आता हूँ। मैं कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार भगा दी। गांव से निकलकर जैसे ही सड़क पर आया तो तानी ने कहा, जमाल बहुत ध्यान से, हो सकता है दुश्मन हमारे लिए घात लगाए बैठा हो। तुम ठीक कहती हो, मैंने सोचते हुए कहा, और कार एकदम से उस कच्चे रास्ते पर डाल दी जो हवेली के पिछली तरफ से नहर पर जा निकलती थी। बचपन से हवेली का एक एक रास्ता मैंने सोचा हुआ था। अच्छा खासा अंधेरा था। मैंने कार कुछ फासले पर रोकी और निकलकर तकरीबन भागते हुए आगे बढ़ा। तानी मेरे साथ थी, वो मुझसे जरा फासले पर थी। 1 मिनट से भी कम वक्त में हम हवेली की चार दीवारी तक जा पहुंचे। छोटा दरवाजा खुला था, मैं तेजी से अंदर दाखिल हुआ। काफी दूर से फायरिंग की आवाज आ रही थी। इसका मतलब था कि हमला इतना भरपूर नहीं था, या फिर दुश्मन कुछ और ही चाहता था। मैं हवेली के बगली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने 4-5 गन बरदार मुलाजमीन को यरगमाल बनाए खड़े थे। वो हवेली में जिस हद तक आ चुके थे, वो तो एक हकीकत थी, लेकिन मैं फायर करने से पहले पूरी तरह जांच लेना चाहता था कि वो किस हद तक रसाई कर चुके हैं। अचानक मुझे शोएब का ख्याल आया। मैंने उसे कॉल मिलाई तो उसने फौरन कॉल वसूल कर ली। कहाँ हो तुम, मैंने पूछा। मैं इस वक्त हवेली की दूसरी मंजिल पर हूँ, उसने बताया। सूरत हाल क्या है, मैंने पूछा। निचली मंजिल तक वो आ गए हैं, दूसरी की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी छा गई है, कोई फायरिंग नहीं हो रही। नीचे क्या सूरत हाल है, मैं नहीं जानता। मैं नीचे हूँ, उन्हें ऊपर आने नहीं देना, कोशिश करना कि उनमें से लोग जिंदा पकड़े जाएं। फिक्र नहीं करना, ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने मिलगुजी रोशनी में तानी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गजब था, उसने सब सुन लिया था। हम निगाहों ही निगाहों में प्लान तरतीब देकर खामोशी से मुखालिफ सिमतों की जानिब बढ़ गए। वो पांचों मेरे सामने थे, 3 एक तरफ थे और 2 एक जानिब। उन्होंने मुलाजमीन पर गन्ने तानी हुई थी। अचानक एक तरफ से फायर हुआ, इसके साथ ही एक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इससे पहले कि वो समझते, मैंने 3 वाली कतार में से एक को निशाना बनाया और फायर कर दिया। जब तक वो फायर की सिमत का अंदाजा करते या भाग कर जाते, 2 मजीद फायर हुए, वो भी जमीन पर थे। एक आखिरी बचा था, वो बाहर की जानिब भागा। उसके दोनों तरफ से फायर आ लगे। उनके गिरते ही मुलाजमीन उठ गए। मैंने दूर ही से पूछा, अंदर कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है, एक मुलाजिम बोला। तो मैंने सामने आकर कहा, सब लोग एक कमरे में चले जाओ। एक ऊपर जाकर शोएब से कहे कि नीचे आ जाए और इन्हें देखे, जो जिंदा है उसे संभाल ले। मैंने तेजी से कहा। कहने के दौरान तानी मेरे पास आ गई। अब हमने बाहर की जानिब देखना था। मैं और तानी बाहर की जानिब निकले ही थे कि बाहर से जोरदार फायरिंग होना शुरू हो गई। 1-2 मिनट ये भरपूर फायरिंग रही, फिर एकदम से खामोशी छा गई। मैं मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता गया। तभी छाके का फोन आया। किधर हो, मैदान साफ है। मैं गेट पर आ रहा हूं, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। फिर सोनी का नंबर मिलाकर उसे मोहतात हो जाने को कहा। वो मुझसे तफसील पूछना चाहती थी, लेकिन वक्त नहीं था। मैं गेट के पास पहुंचा तो वहां छाका कई सारे लोगों के साथ था। उसने कुछ लोगों को जमीन पर लिटाया हुआ था। मैंने जाते ही कहा, छाके इन सब को संभालो, मैं अभी आता हूं। मैंने कहा और सामने खड़ी बाइक पर बैठा तो तानी मेरे पीछे आ बैठी। ना जाने क्यों मुझे बेचैनी हो रही थी। इस हमले का मकसद मुझे समझ में नहीं आया था। जो मैं समझ रहा था वो बहुत ही भयानक था। मैं हवा की रफ्तार से अपने गांव की तरफ जा निकला। मैं गली में पहुंचा तो धक से रह गया। वही हुआ जो मैंने सोचा था। गली में 3 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल खड़े थे। 2 आदमी गेट में गोलियां मार रहे थे। फायरिंग की आवाज से पूरा माहौल खौफ से भरा हुआ था। तानी, तुम यहीं ठहरो, मैं ऊपर की गली से जाता हूँ। जैसे ही मोटरसाइकिल की रोशनी नजर आए, तुम, ये कहते हुए मैंने उसे दस्ती बम दे दिया। उसने असबात में सर हिलाया और बाइक से नीचे उतर गई। मैं उसी वक्त वापस मुड़ा और बर्क रफ्तारी से बढ़ा। बिलाशुबा वो सोहनी को अगवा करने के चक्कर में थे। उन्होंने बहुत सोच कर प्लान किया था। ये प्लान हमारे दरमियान किसी बंदे के बगैर नहीं हो सकता था। मैं गली की नुक्कड़ पर पहुंचा और ब्रेक लगाकर जैसे ही दस्ती बम की पिन निकाली, गली में एक जबरदस्त धमाका हुआ। उसी लम्हे रोशनी हुई, मैंने भी बम फेंक दिया।
अचानक ही कई चीखें बुलंद हुईं। उनमें से कई मेरी तरफ भागे। मेरे हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल था। मैंने ताक कर उनका निशाना लेना शुरू कर दिया। दूसरी गली की नुक्कड़ पर भी ऐसे ही फायरिंग थी। उस वक्त मैं हैरान रह गया जब मेरे घर की छत पर से भी फायरिंग होने लगी। अचानक ही एक जोरदार धमाका हुआ। ये छत पर से दस्ती बम था। छत पर बना कमरा असले से भरा हुआ था। गली में चीखें, कराहें और आहोजारी थी। मैं चंद मिनट वहीं खड़ा रहा, फिर इस तरह ऊपर से घूमकर वहां चला गया जहां तानी थी। वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने इधर उधर देखा। वो दीवार की जड़ों के साथ बेहिसो हरकत लेटी हुई थी। मैं चौंक गया। तानी का इस तरह पड़े होना खतरे से खाली नहीं था। मैंने भागकर उसे उठाया तो वो बेहोशी की हालत में थी। उसका पूरा बाजू खून से लथपथ था। उसने कांधे पर हाथ रखा हुआ था जहां से खून उबल रहा था। मेरा दिमाग अचानक फिर गया। मैंने उसका पिस्टल उठाया और फायर करने ही वाला था कि मुझे एकदम से ख्याल आया, ये मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे तानी को बचाना चाहिए था। मैंने उस लम्हे में खुद पर काबू पाया और फ़ोन निकालकर छाके का नंबर पुश किया। मैं गांव आ रहा हूँ, जल्दी पहुंच, तानी को फायर लगा है। ये कहकर मैंने फोन जेब में डाला और पिस्टल तान ली। सामने से फायरिंग खत्म हो चुकी थी। शायद वो लोग दुबक गए थे या फिर भाग गए थे। इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। अचानक छत पर से फिर फायरिंग हुई, मगर नीचे से कोई जवाब नहीं दिया गया। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं सोनी को फोन करके पूछूं। मैंने जल्दी से कॉल मिलाई तो लम्हों में राब्ता हुआ। मैं छत पर हूँ, मेरे साथ सारा है, अम्मा और मुराद नीचे हैं। ठीक है, गली में मैं ही हूँ। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने जानबूझकर तानी के बारे में उसे नहीं बताया। छाका पहुंच गया तो उसकी कार की हेडलाइट्स की वजह से गली में रोशनी हो गई। उसके साथ काफी लोग थे जो यके बाद दीगरे अपनी अपनी गाड़ियों में वहां पहुंच गए। गली रोशन हो गई थी। मुझे कोई बंदा कहीं भी दिखाई ना दिया। अगर कोई था तो वो छुपा हुआ हो सकता था। छाके ने तानी को कार में डाला और मुझे वहीं रुकने का कहकर निकल गया। कुछ उसके साथ चले गए और बाकी वहीं ठहर गए। जो कोई भी है असला फेंक कर बाहर आ जाए, वरना देखते ही गोली मार दूंगा, मैंने ऊंची आवाज में कहा। तो चंद लम्हे तक कोई हरकत ना हुई। फिर एक कार की साइड से एक आदमी निकला। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे। वो जख्मी था। वो करीब आया तो उसे लोगों ने संभाल लिया। अगले चंद मिनट तक कोई दिखाई ना दिया तो मैं आगे बढ़ा। मेरे साथ दो नौजवान थे। अचानक एक कार के पीछे से एक बंदे ने फायर करना चाहा। वो फायर तो ना कर सका, उससे पहले ही तीन फायर उसे लग गए। वो डकारता हुआ जमीन पर तड़पने लगा। मेरे सामने कई बेहिसो हरकत लोग पड़े हुए थे जिनका मुझे अफसोस था। वो उन लोगों की हिफाजत कर रहे थे जो इंसान कहलाने के हकदार नहीं थे। पूरी गली में फिर लिया, कोई खतरा ना रहा तो मैंने सोनी को फोन करके बाहर आने को कहा। अगले चंद मिनट में वो चारों बाहर आए। बाहर का मंजर बड़ा भयानक था। वो फौरन ही हवेली के लिए निकल गए। मैं उस जख्मी के पास गया और उससे पूछा, किसने भेजा है तुम लोगों को? शाहजेब ने। हम उसके साथ ही आए हैं, उसने कराहते हुए कहा। तो मैंने पूछा, उसका फोन नंबर बोल, मैं उससे पूछ लूं कि वो तेरा इलाज करवाएगा या मैं करूं। मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, जो कहोगे करूंगा, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने नंबर बता दिया। मैंने शाहजेब का नंबर मिलाया। चंद लम्हे के बाद राब्ता हो गया। उसने हेलो कहा तो मैंने आवाज़ पहचानते हुए कहा, तुझे पता तो चल ही गया होगा कि तेरे सारे बंदे मारे गए हैं या मेरे कब्जे में हैं। अब ये मत कहना कि तुमने तो बंदे भेजे ही नहीं थे। ये तो शुरुआत है प्यारे, मेले तक देख तेरे साथ क्या होता है। तू इस काबिल ही नहीं रहेगा कि मेले में जा सके, वरना वहीं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं जानता था कि तू ऐसे ही किसी हमले की तैयारी में होगा, मगर कब तक ऐसे हमलों से बचता रहेगा? उसने नफरत से कहा। जब तक मेरे रब साईं ने चाहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। बाकी रही बात हमलों की, तो ये मुझे भी करने आते हैं। फर्क ये है कि मैं खुद आता हूं और तू चूहे की तरह छुप जाता है। अब तुमने पहल कर ली है, इंतजार कर कि मैं तुझ तक कब पहुंचता हूं। मैंने उसकी धमकी का जवाब देते हुए कहा तो वो गुस्से में बोला, अगर मर्द है तो अभी आ जा। किसी मैदान में आऊं या उस बिल में जहां तू छुपा बैठा है? अभी तू अपने बंदे समेट कर ले जा। यकीन कर मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मैंने इंतहाई तंज से कहा तो एकदम से फोन बंद हो गया। मैंने जख्मी बंदे की जानिब देखा। उसे अस्पताल पहुंचाने का कहकर हवेली की जानिब चल दिया। मैंने रास्ते में छाके से पूछा। वो अस्पताल पहुंच चुका था। तानी के कांधे, रान और पिंडली में गोलियां लगी थी।
इस वक्त वो बेहोश थी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई थी और वो उसे जिलाई हस्पताल लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। हवेली में रंधावा पहुंच चुका था। उसने लाशें कब्जे में ले लीं और जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया। इस वक्त मैं जसपाल की कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था। सुबह का सूरज तलू हुआ तो पूरे इलाके में खौफो हरास फैल चुका था। आम तासुर यही था कि अब ना जाने क्या होगा। दूसरी तरफ अफवाहों ने सर उठा लिया था। हर कोई अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। जुल्म और एहसान जब भी और जहां भी किया गया था, उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। मैं हवेली में था जबकि अम्मा और सारा जिलई अस्पताल चले गए थे। तानी अभी तक होश में नहीं आई थी। डॉक्टर्स ने यही कहा था कि उसके होश में आने के बाद ही कुछ हतमी बता सकते हैं। इसके लिए मैं अपने दिल में बहुत दर्द महसूस कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर उसके पास जा पहुंचूं। फितरी सी बात है कि उसे अपनी आंखों से देखता तो मुतमईन हो जाता, लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। छाका उस वक्त तानी के पास था और जसपाल चला गया था। रात गए उसने मुझसे राब्ता किया था जब वो फ्लाइट के लिए डिपार्चर लाउंज में था। मैंने उसे यहाँ के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। उसके बाद मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ था। नूरनगर और इलाके भर से बहुत सारे लोग हमारी हिफाजत के लिए आ गए थे, जो हवेली के इर्द गिर्द और गांव में मौजूद थे। मैंने शोएब के ज़िम्मे लगा दिया कि इन्हें संभाले, खामखा कोई हंगामा खड़ा ना कर दें। उनमें कोई साजिशी भी हो सकते हैं। रंधावा से मेरी बात हो चुकी थी। उनके 8 आदमी मारे गए थे। वो शदीद जख्मी थे जिनकी हालत नाजुक थी और एक खतरे से बाहर था। सिर्फ एक आदमी सही सलामत था। ये वही था जिसने अपना आप मेरे हवाले किया था। वो बयान दे चुका था कि वो शाहजेब के लिए काम करता है। उसी ने यह हमला करवाया है, जबकि शाहजेब इस वाक़या का सिरे से इनकारी था और उसने इल्ज़ाम लगाया कि यह मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। मैंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया था। मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैंने मेले के सारे मुंतजमीन को अपने पास बुला लिया था। दोपहर से थोड़ी देर पहले वो मेरे पास आ गए। मैंने एक कमरे में उन्हें एहतराम से बिठाया। चाय आ जाने तक उनके साथ रात वाले वाक़या पर बात करता रहा। तभी उनमें से एक ने कहा, जी बेटा, हमें क्यों बुलाया? कोई ख़ास बात? खास ही नहीं, बहुत अहम भी है। क्या आप सब नहीं समझते कि इस मौके पर मुझे आपसे बात करनी चाहिए? मैंने साफ अल्फाज में कहा, क्योंकि अब मैं उनसे खुलकर बात करना चाहता था। कैसी बात बेटा? उसी ने पूछा तो मैंने कहा, आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे की बातों में आकर मुझे निशाना बनाने की कोशिश करें। मैंने कहा तो दूसरे ने पूछा, तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते हो? तो फिर मुझे आप सब जवाब दें कि मेले के बारे में मुझसे गारंटी लेने का मतलब क्या था? किसके कहने पर आपने मुझे कहा? यह साजिश बेनकाब हो चुकी है कि मेले में किसने शर डालना है। मैं जानता हूं, आपसे सिर्फ तस्दीक चाहता हूं। मैंने काफी हद तक सख्त लहजे में कहा, तो उनमें से चंद एक के चेहरे यकदम बदल गए। ये तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो हम पर। मैं इल्ज़ाम नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप मेरी बात से इनकार करें, मैं सबूत दे दूंगा। मैंने पूरे एतमाद से कहा तो उनमें से एक बोला, कहाँ है सबूत? ये ऐसे थोड़ी दे दूंगा। मैं पूरे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को जमा करके दूंगा, ताकि वो आप सब लोगों के बारे में जान सकें कि आप किसके आलाएकार हैं। ज़रा सा सबूत तो मैं इस वक्त भी दे सकता हूँ। ये कहकर मैंने सेल फोन निकाला और रात शाहजेब से हुई बात की रिकॉर्डिंग कॉल चला दी। ये तेरी और उसकी दुश्मनी है, इसका मेले से क्या ताल्लुक? एक ने तेजी से कहा तो दूसरे ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, ये सच है जमाल, हम वकास की बातों में आ गए थे। उसने हमें मजबूर कर दिया था कि मेला करवाएं और इसमें वो तुम्हें अपना टारगेट बनाए। अब अगर हम हठधर्मी करेंगे तो मजीद जलील होंगे। मैं तो ये सोचकर कांप जाता हूं कि तुम लोगों की लड़ाई में कितने बेगुनाह मारे जा सकते हैं। नहीं, मैं बाज आया। उसके यूं कहने पर बाकी खामोश हो गए। मैं चंद लम्हे उनकी तरफ से किसी बात का इंतजार करता रहा, फिर बोला, अब ये फैसला आप लोगों ने करना है। बिलाशुबा इस मेले में लड़ाई होगी और लाजमी बात है कि बेगुनाह भी मारे जा सकते हैं। मैं तैयार हूं और अब आपने मेला करवाना है। जाएं, जाकर उन्हें बता दें। देखते हैं कि मेले में पहुंचता कौन है। मैंने हतमी और सख्त लहजे में कहा तो वो खामोश हो गए। उन्होंने इस मौजू पर कोई बात नहीं की। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी खामोशी से उठकर चले गए। शाम तक तानी को होश आ चुका था। डॉक्टर ने मस्बत रद्द अमल का इजहार किया तो मुझे काफ़ी सुकून मिला।
छाके ने मुझे पूरी तफसीलात बता दी तो मुझे इत्मीनान हो गया। अम्मा और सोहनी की वजह से वो बहुत मुतमईन थी। रात गए जसपाल का कनाडा से फोन आ गया। वो बहुत गुस्से में था। उसका यही कहना था कि उसे भेजने की साजिश ही इसीलिए की गई थी कि वो हमला करें। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मुतमईन किया। उसकी फ़ोन कॉल सुनकर मैं खुद सोच में पड़ गया। मुझे फैसला करना था कि अब मुझे खुद बढ़कर उन पर हमला कर देना चाहिए या सिर्फ अपना दिफा ही करूं। इस वक्त मेरी ताकत बिखर गई थी और मुझे पूरा यकीन था कि इस बारे में मेरे दुश्मनों को ज़रूर खबर होगी। एक सवाल मैं अब तक नज़रअंदाज करता जा रहा था कि वो कौन था जिसे ये मालूम था कि कल रात हम सब हवेली में नहीं थे। मैं अगर पूछ कुछ करता तो ये बात उन सब को अलर्ट कर सकती थी, जो बहरहाल मेरे लिए नुकसानदेह थी। ना जाने क्यों मेरा शक शुएब की तरफ जाता था, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। दूसरी जानिब उनके यहाँ मेरा ऐसा कोई बंदा नहीं था जो उनके बारे में मुझे कोई मालूमात दे सके। मैं एक तरह से हिसार में आ गया था, जैसे कोई किसी को बांध कर रख दे। यही कैफियत मुझे बेचैन कर रही थी। मैं जानता था कि साजिशी ऐसा ही करते हैं, दुश्मन को जेर करने से पहले उसकी ताकत को तोड़ते हैं। मैं हवेली के ड्राइंग रूम में बैठा मुसलसल यही सोचता जा रहा था कि दरवाजे में शुएब नमूदार हुआ। वो यूं खड़ा था जैसे अंदर आने की इजाजत चाहता हो। आओ शुएब, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने पूछा तो वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, सर क्या ये ऐसे हालात हैं कि मुझे सो जाना चाहिए? हालात तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अब मैं उसे क्या कहता? मेरे खामोश हो जाने पर उसने कहा, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं शाहनवाज के डेरे पर कोई थोड़ी बहुत हलचल मचाऊं। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। मतलब उन्हें बता दिया जाए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। उसने बेखौफी से कहा। तो मैंने मोहतात लहजे में पूछा, शुएब, जो तुम कह रहे हो वो समझ भी रहे हो? और क्या ये तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटी होगी या तुम यहाँ के हालात देखकर ऐसा चाहते हो? मेरे पूछने पर उसने चंद लम्हे सोचा और बोला, सर हमें मौका ही नहीं मिला कि मैं आपको तफसील से अपनी यहाँ मौजूदगी के बारे में बता सकूं। मैं पहले आपको वो बताता हूँ, फिर मेरा ख्याल है कि मैं आपको अपनी बात समझा सकूंगा। बोलो, मैंने दिलचस्पी से कहा। सर ये जो शाहनवाज है ना, मेरे बाप का कातिल है। ये उसने बहुत मुश्किल से कहा था। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। यहाँ हालात बहुत मुश्किल हो गए थे, तो मेरी माँ वापस अपने मैके चकवाल चली गई। मैं वहीं पला बढ़ा। मेरे अंदर उसी तरह आज भी इंतकाम भरा है। उसी की वजह से मैं भर्ती हुआ। मैं यहाँ के हालात के बारे में जानता था। शायद आपने मुझे नहीं देखा। जिस वक्त शाहनवाज के डेरे पर एक्शन हुआ, मैं आपके साथ था। मैं आपके कवर पर था। ओह, तो वो तुम थे? मैंने बेसाख्ता कहा और उसके चेहरे पर देखा तो मुझे याद आ गया कि मैंने इसे कहाँ देखा हुआ था। तभी वो बोला, जी मैं ही था। वहाँ पहला फायर मैंने किया था। मुझे ये उम्मीद थी कि मैं शाहनवाज को वहीं ख़त्म कर लूँगा, मगर ऐसा ना हो सका। वो पकड़ा गया। कोई सबूत इसलिए नहीं मिला कि वो सियासी बैकग्राउंड रखता है। यहाँ से इत्तलात आती रहीं कि वो इलाके पर वही दबदबा चाहता है। खुफिया ताकतें उसकी मदद को आन पहुंची हैं। इसीलिए हमारा नेटवर्क हरकत में आ गया। मैंने अपने ऑफिसर के साथ मिलकर एक पूरा प्लान तरतीब दिया। इसमें मेरा ज़ाती इंतकाम भी शामिल है, जो मुझे यहाँ लेकर आया है। मेरा किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपके सहारे मैं कामयाबी हासिल कर पाऊंगा। इसलिए यहाँ आपके इल्म में लाए बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक अहम सवाल ये है कि यहाँ से किसने उधर इत्तला दी होगी कि हम सब। मैंने कहना चाहा तो वो बोला, वो मैंने पकड़ लिया है और वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड था यहाँ। मैं उस पर ही खेल खेलने जा रहा हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। मैं एकदम से खुश हो गया तो वो तेजी से बोला, ये हमला बगैर किसी प्लान के उजलत में था। उन्हें शाम के वक्त खबर मिली और उन्होंने चढ़ाई कर दी। अगर हमला किसी प्लान के तहत होता तो अब तक वो हवेली पर कब्जा कर चुके होते या कम से कम सोहनी बीबी अगवा हो चुकी होती। तुम्हारी बात समझ में आती है, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने पूछा। अगर उनके दो आदमी यहाँ हैं तो हमारे तीन बंदे वहां पर हैं और वो ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं। मैंने बहरहाल सिक्योरिटी का एक नया प्लान बना लिया है, वो मैं आकर बताता हूँ। पहले मैं। खैर तुम अब क्या खेल खेलने जा रहे हो? मैंने पूछा तो वो बोला, इस वक्त शाहनवाज अपने घर पर है। शाहजेब और मलिक सज्जाद उसके डेरे पर हैं। मैं उसी मुखबिर के जरिए उन्हें पैगाम दूं
کہ آپ यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हवेली खाली है, मुलाजमीन डर की वजह से भाग गए हैं। फिर वो जो रद्द अमल करेंगे मैं उसी के मुताबिक अपना काम करूंगा। मुझे सिर्फ ये करना है कि उजलत में गाड़ी लेकर निकल जाऊं। मैंने मोहतात अंदाज में पूछा तो उसने सर हिलाते हुए कहा, जी सर, ताकि जो बाहर मुखबिर बैठा है वो भी उन्हें इस इत्तला की तस्दीक कर दे। ओके, मैं निकलता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं उसी वक्त उठा। मैं ये रिस्क लेना चाहता था। मुझे ये यकीन तो था कि शाहनवाज के डेरे पर एक्शन के वक्त वो मेरे साथ था। बाकी जो उसने कहानी सुनाई थी, मुझे उस पर 100% यकीन नहीं था। वो एजेंट ही क्या जो सीधी बात करे। मैं उस पर पूरी तरह एतमाद नहीं कर सकता था। मैंने फोन करके छाके को इस सारी बात से आगाह किया तो वो बोला, जमाल, ये कर गुजरो। इससे रंधावा की पोजीशन का भी पता चल जाएगा कि कहीं वो हमें डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा और उसने शुएब को हमारे सर पर ला बिठाया है। हमारे बारे में जानने के लिए अब ये ज़रूरी है। तो फिर मैं निकलता हूँ, मैंने कहा तो वो बोला, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करके बताता हूँ, तब निकलना। मैं यहाँ भी ये ड्रामा करता हूँ कि तानी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुमकिन है उनका यहाँ भी कोई मुखबर हो। ठीक है, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। रात के आखिरी पहर हवेली के पोर्च में अच्छा खासा हंगामा किया गया, सिर्फ ये जिताने के लिए कि मैं वहां से जा रहा हूं। मैं अकेला ही वहां से निकला था। गेट पर रुक कर मैंने सिक्योरिटी हेड को हिदायत दी कि वो अलर्ट रहे और मैं निकल गया। शहर जाने वाली सड़क से जरा पहले छाके की तरफ से भेजे हुए चंद बंदे खड़े थे। मैं भी उन्हें पहचानता था। वो सब मेरे साथ आ बैठे। मैंने गाड़ी शहर की तरफ भगा दी। काफी आगे जाकर मैंने गाड़ी कच्चे रास्ते में उतारी। वहां भेदा मेरे लिए बाइक लिए खड़ा था। मैंने उसे देखकर गाड़ी खड़ी कर दी। लो भाई दोस्तों, तुम में से सिर्फ एक मेरे साथ आ जाए, बाकी भेदे के साथ डेरे पर चले जाएं, या शहर का एक चक्कर लगाओ, मैं आता हूं। नहीं जी, हम जानते हैं कि आप किसी मुहिम पर हो। हम आपके साथ ही जाएंगे। नहीं यार, जहां मैं जा रहा हूं वहां खामोशी चाहिए। सिर्फ एक बंदा जो बाइक अच्छी तरह चला ले, बस। मेरे यूं कहने पर एक लड़का नीचे आ गया। उसने बाइक संभाली। मैंने पिस्टल नेफे में उड़सा, गन के साथ फाजिल मैगजीन निकाले और हम वहां से चल दिए। हमारा रुख शाहनवाज के डेरे की तरफ था। जहां हम खड़े थे वहां से उसका डेरे का फासला कम से कम 20 मिनट का था। हमारा ये सफर खेतों के दरमियान कच्ची सड़कों से होना था। हम तकरीबन 25 मिनट में डेरे के पास पहुंच गए। उस वक्त आखिर शब के चांद ने अपना सर निकाला था। तुम यहीं ठहरो बाइक के पास और हर तरफ से मोहतात रहना, मैंने कहा और गन उसे थमाकर करीबी दरख्त पर चढ़ता गया। मैंने डेरे की तरफ देखा, वहां अच्छी खासी हलचल थी। फिर एकदम से गेट खुला और 3 गाड़ियां तेजी से निकलकर चलती चली गईं। कुछ देर के बाद ही सुकून छा गया। उनमें कौन किधर गया था मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता था। मैंने छाके को फोन करके बताया, मेरी गाड़ी उनके पास। तुम कहाँ हो? वो बता रहे हैं कि तुम अकेले कहीं निकल गए हो। मैं शाहनवाज के डेरे के बाहर हूँ, मैंने बताया तो उसने धाड़ते हुए कहा, तुम वहां? हाँ, मैं वहां हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। अपने उन दोस्तों से कहो कि वो कहीं भी छुपकर सुकून से बैठ जाएं, सड़क पर ना रहें। मुमकिन है मेरे चक्कर में। मैं समझ गया, लेकिन तुम वहां से निकलो, हम बाद में देख लेंगे। उसने गुस्से को दबाते हुए कहा तो मैंने फोन बंद करके खामोशी पर लगा दिया। मैं तेजी से सोच रहा था कि इन गाड़ियों में कौन गया है। अगर इनमें शाहजेब या मलिक सज्जाद हैं तो मैं उनके पीछे जाऊं। अगर वो नहीं है तो डेरे में ही कोशिश करूं। मैं बेचैन था कि मुझे उनके बारे में पता चले। मैं दरख्त से नीचे उतर आया और टहलने लगा। अचानक मुझे शुएब का फ़ोन आ गया तो मैंने फ़ोन रिसीव किया तो वो बोला, कहाँ हो आप? मैं सड़क पर एक जगह खड़ा हूँ। क्यों? और मुझे कब तक बाहर रहना होगा? आप कहीं इधर उधर हो जाएं। डेरे से पता चला है कि शाहजेब काफ़ी सारे लोगों को लेकर निकला है। आपके लिए मुखबर ने मेरे मुताबिक ही इत्तला दी है। तुम कहाँ हो? मैं शाहनवाज के घर के बाहर हूँ। डेरे पर जाने के लिए वो किसी वक्त भी निकल सकता है। शाहजेब ने उसे सूरत हाल बताकर वहीं बुलवाया है। इसका मतलब है डेरे पर मलिक सज्जाद ही है। मुमकिन है हो, या वो शाहजेब के साथ निकल गया हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। डेरे के अंदर की सूरत हाल का पता करो। अगर मलिक सज्जाद वहां नहीं है तो शाह नवाज ने वहां क्या करने जाना है? मैंने कहा ही था कि वो बोला, वो निकल आया है बाद में। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मेरा डेरे पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ था। मैं अकेले अंधाधुंध डेरे में घुस भी जाता और वहां कोई ना होता तो फिर भी मायूस ही होना था। और फिर ये एक बहुत बड़ा रिस्क था।
अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो यहाँ नहीं हैं तो उन 3 गाड़ियों में से किसी एक में तो होंगे। वो मेरे शिकार पर निकले हैं तो क्यों ना मैं उनका शिकार करूं। ये सोचते ही मैं बाइक की तरफ बढ़ा। लड़का मेरे इंतजार में था। मैंने उससे गन पकड़ी तो वो बाइक पर जा बैठा। मेरे बैठने तक उसने बाइक स्टार्ट की। मैंने उसे रास्ता बताया। अगले चंद लम्हों में हम वहां से निकल पड़े। वापस पक्की सड़क पर आते हमें उतना ही वक्त लगा। मैं रास्ते में उसे समझाता हुआ आया कि किस सूरत हाल में क्या किया जाता है। वहां पहुंचकर उस लड़के ने कहा, भाई जी मैं राब्ता करूं गाड़ी वालों से। हाँ, उन्हें बताओ कि हम कहाँ पर हैं। वो लड़का उनसे राब्ता करने लगा। वो हमसे कुछ फासले पर एक डेरे पर हमारे इंतजार में थे। उसने अपनी पोजीशन बताकर फौरन आ जाने को कहा। हम वहीं खड़े इंतजार करते हुए उस सिमत देख रहे थे जिधर से हमारी गाड़ी ने आना था। उन्हीं लम्हात में जब हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी, मुखालिफ सिमत से 3 गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। मेरा दौरान खून एकदम ही से तेज हो गया। मैं देख रहा था तीनों गाड़ियां तेजी से करीब आ रही थी। मैंने लड़के को बाइक पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया और उसने बाइक स्टार्ट कर ली। मैंने गन सीधी कर ली। वो तीनों गाड़ियां सड़क के दरमियान यूं रुक गईं कि जैसे उन्होंने रास्ता रोक लिया हो। हमारी गाड़ी उनसे कुछ फासले पर रुकी ही थी कि कई सारे लोगों ने उसे घेरे में ले लिया। तेज रोशनी में उन सब की नकलो हरकत दिखाई दे रही थी। दरमियान वाली गाड़ी में से पिस्टल लिए शाहजेब निकला। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की, उसका निशाना लिया और फायर कर दिया। उसी लम्हे लड़के ने जगह बदल ली। मैंने देखा शाहजेब लड़खड़ाता हुआ सड़क पर गिर गया था। वहां मौजूद सभी लोग अचानक इफ्ताद पर चौंक गए। वो तो सामने की गाड़ी को निशाना बनाने वाले थे, लेकिन एक साइड से हमला हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने फायरिंग नहीं रोकी। हमारी गाड़ी की तरफ से भी फायरिंग होने लगी। पता नहीं वो लोग कितने थे, लेकिन जो मेरी रेंज में आ जाता वो बचता नहीं था। लम्हों में सड़क पर लाशें बिखर गईं। अचानक आगे वाली गाड़ी धमाके से फट गई। शायद टैंकी में कोई बुलेट जा घुसी थी। उसी वक्त पिछली गाड़ी मुड़ी और वो वापस भागती चली गई। कुछ देर में ही सुकून हो गया। मैं अपनी गाड़ी तक गया, वहां से टॉर्च ली और दूर ही से देखने लगा कि शाहजेब है भी या उसे उठा कर ले गए हैं। वो एक तरफ पड़ा था। मैंने 2 लड़कों को अपने कवर पर लिया और उसकी जानिब बढ़ा। बाकी लोगों को फैला दिया था कि अगर कोई दुबका पड़ा है तो उसे पकड़ लिया जाए। मैं शाहजेब के पास पहुंच गया। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। उसके सीने पर गोली लगी थी। मैंने उसे झंझोड़ा तो उसने आंखें खोली। मेरी तरफ देखकर उसके चेहरे पर नफरत फैल गई। अब भी अगर तुम कहो कि दोबारा इस इलाके में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा। तो उसने मुझ पर थूकना चाहा तो मैंने अपने पिस्टल की नाल उसके मुंह में रखते हुए कहा, मुमकिन है कल सुबह तुम्हें कोई पहचान भी ना पाए कि तुम शाहजेब हो। घटिया बाप की घटिया औलाद, कोई घटिया हरकत मत करना। मेरी बात सुनकर उसके वजूद में एक बार की जुम्बिश हुई और फिर वो साकित हो गया। मैं नहीं जानता था कि उनमें मलिक सज्जाद भी था या नहीं। मैंने एक निगाह सड़क पर पड़े लोगों पर डाली और फौरन ही वहां से निकल जाने के लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। उस वक्त मैं पक्की सड़क से उतरकर हवेली जाने वाली सड़क पर था। उस वक्त मैं उन सब लोगों को उतार चुका था जब छाके की कॉल आई। उसने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, तुमने शाहजेब को पार कर दिया। तुम तो मुझे रोक रहे थे, वो मेरा शिकार करने निकला था। खैर, आकर तफसील पूछ लेना। मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। हवेली पहुंचा तो पौ फट चुकी थी। मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। मैं फ्रेश होकर बैठा चाय पी रहा था जब शुएब आया। उसके चेहरे पर अजीब सी मस्ती भरी मुस्कुराहट चमक रही थी। उसने दूर ही से इंतहाई जज्बाती होते हुए मेरी तरफ देखा। मेरे करीब आते ही बोला, मैंने अपना इंतकाम ले लिया, कर दिया शाहनवाज का काम। वो नहीं रहा इस दुनिया में। मैंने उठकर उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपकते हुए बोला, मुबारक हो। फिर उसे अलग करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि माफ कर देना ज्यादा बेहतर है, लेकिन इन हैवानों, सांपों और मूजी जानवरों को मार देने का हुक्म है जो इंसानों के लिए जर रसां हो जाएं। खैर, कैसे हुआ सब। मैं बैठ गया तो वो सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, मैं उसके घर के सामने उसकी ताक में था। मेरे साथ 2 मजीद लोग थे। गेट खुला और उसकी गाड़ी बाहर निकली तो उसकी रफ्तार ना होने के बराबर थी। जैसे ही वो बाहर निकला हम 3 तरफ खड़े थे। उस पर बरस्ट मारे। उसके गार्ड्स को मौका ही ना मिला कि हम पर फायर कर सकें। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो खत्म हो गया? कोई खबर, कोई इत्तला? मैंने पूछा। सारे इलाके में ये इत्तला फैल चुकी है, बल्कि शाहजेब के मरने की भी। मलिक सज्जाद तो ये सुनते ही वापस भाग गया है। डेरा सुनसान पड़ा है, कोई इश्तहारी वहां नहीं है।
اس کا بیٹا ہی ہے جو لندن سے آ رہا ہے، وہ دیکھیں کیا کرتا ہے۔ شاہ زیب والی تو نسل ہی ختم ہو گئی، اس نے دبے دبے جوش سے بتایا۔ لیکن شاہ دین کی تو ہے، اس کی بیٹی سونی بی بی۔ میں نے اسے یاد دلایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تبھی میں نے کہا، خیر تم اب الرٹ رہنا اور پورے علاقے کی خبر رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جی بہتر، اس نے کہا اور اٹھ گیا۔ میں کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، کم از کم اب یہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، صرف قانونی کارروائیاں تھیں۔